الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابِ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ایک بڑا مشہور اثر ہے۔ اس میں اس جلیل قدر صحابی رسول نے مومن کی اور فاجر شخص کی گناہ کے تعلق سے جو حالتیں ہوتی ہیں اس کا بہت ہی خوبصورت سا بیان کیا ہے، اور یہ بڑی مؤثر بات ہے۔ انسانی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کا شمار نیکوکار لوگوں میں ہوتا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ کا انہیں احساس نہیں ہوتا۔ ایک طرف جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں لیکن انہیں یہ خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی جناب میں ہماری یہ نیکی قبول نہ کی جائے، وہ ڈرے ہوتے ہیں اس بات سے۔ اور دوسری طرف جو فاجر شخص ہوتا ہے وہ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا، گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین کا حساب کتاب کا کوئی خوف نہیں ہوتا، بالکل ڈھیٹ ہو کر نڈر ہو کر وہ اس دنیا کے اندر جیتا ہے اور دھڑلے سے ہر کام کرتا ہے۔ نہ معاشرے کے اندر اسے بدنامی کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑے جانے کا اور عقاب کا اسے کوئی ڈر ہوتا ہے۔ تو اس جلیل القدر صحابی رسول نے بیان کیا کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو اس انداز میں لیتا ہے، اسے اس طرح سے دیکھتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے، ڈر ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے اور وہ اسی کے اندر فنا نہ ہو جائے۔ مومن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ المومنون کے اندر کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، لرزاں ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی مومن کی تو یہ حالت رہتی ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ سے ڈرا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکی رد کر دی جائے، قبول نہ کی جائے۔ اس لیے کہ بہت ساری نیکیاں انسان کی ہوتی ہیں، جو نیکی ہوتی ہے اس کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، قرآن کریم میں اور حدیث میں اس کو نیکی کہا گیا ہے، لیکن وہ نیکی انسان کے کام نہیں آتی اس لیے کہ وہ کسوٹی پہ کھری نہیں اترتی۔ حدیثوں کے اندر اور قرآن کریم کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں آپ لوگ اکثر سنتے ہیں کہ چیزیں مشروط ہیں۔ نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اگر شروط کو ہم نے پورا نہ کیا، اس کے ارکان کو ہم پوری طریقے سے بجا نہ لائے، وہ چیز نماز نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا شمار نیکی میں نہ ہو۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے کی بابت ہم سنتے ہیں کہ کس طرح کا روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اور کتنے وہ لوگ روزے دار ہوتے ہیں جن کو صرف بھوک اور پیاس ہاتھ آتی ہے، روزے سے ان کو کوئی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا روزہ وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو نیکوکار لوگ جو ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرتے جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے یہ احساس اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکی یہ اللہ رب العالمین کی رد کر دی جائے۔ تو غور کیجئے کہ جو شخص اس بات سے ڈرے کہ کہیں اس کی نیکی قبول نہ ہو، رد ہو جائے، اس سے اگر کوئی چھوٹا سا گناہ بھی صدر ہو جائے گا تو اسے کتنا زیادہ احساس ہوگا۔ اور یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اور صحابہ کی زندگی میں چیز ملتی ہے
कि वो अपना शिआर समझते थे। तौबा और इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का एक बेहद ही मजबूत किस्म का हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा से बनाते थे उसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप एक महफिल के अंदर, जिस मजलिस के अंदर आप बैठे होते थे, 70 से जायद या 100 से जायद मरतबा आप इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। इसी तरह आपके बारे में है कि दिन और रात में आप सैकड़ों मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और यही साहबे किराम की जिंदगी थी, इसलिए कि उन्हें एहसास था कि हमसे गुनाह सरजद होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं पकड़ न ले। इंसान से जब गुनाह सरजद होता है तो उसे यकीन होता है कि हमने ये गुनाह किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो गिरफ्त कर ले, उसे कोई पूछने वाला नहीं है कि अल्लाह तूने क्यों पकड़ लिया। इसलिए कि हमने अगर गुनाह किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हक है कि वो हमारी गिरफ्त कर ले, उस पर हमको सजा दे ले। लेकिन हमने अगर कोई नेकी की है, वो नेकी शराइत पे खरी उतरी कि नहीं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हुई कि नहीं, ये चीज मशकूक है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले अपना रहम करम से, ये उसका रहम करम होता है। तो बंदा नेकी करके भी डरा होता है, जो सही मानों में अल्लाह का बंदा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ईमान रखता है। लेकिन यही दिल, ये एक साहिब ईमान होता है, उसी का दिल अगर सियाह होता जाए, गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से इंसान के दिल पे मैल बैठती जाती है, सियाही आती जाती है, सियाह नुक्ते लगते जाते हैं, यहाँ तक कि वो पूरा दिल सियाह हो जाता है। तो मोमिन को हर वक्त आगाह और चौकन्ना होना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका दिल सियाह हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर रमक बाकी न रहे। मोमिन का दिल ईमान की वजह से मुनव्वर और ताबनाक होता है। वहाँ इंसान से जब कोई गलती होती है तो उस दिल के अंदर खटक पैदा होती है। इंसान से कोई गुनाह सरजद होता है तो दिल उसका मलामत करता है कि तुझसे क्या हुआ, और मजबूर करता है उस शख्स को कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आए, रुजू करे, अपने गुनाहों का इतराफ करे, दोबारा उस गुनाह के न करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी चाहे, इस्तिग़फ़ार करता है वो कि अल्लाह तो हमें माफ फरमा दे। लेकिन ये बात भी है कि जो लोग नेकोकार होते हैं, बड़े बड़े गुनाह जिनको जाना जाता है कि ये बड़े गुनाह हैं, जैसे फाहिशा हुआ, चोरी हुई, इस तरह की चीजें जो हैं आमतौर से नेकोकार लोग नहीं करते हैं। बड़े बड़े गुनाह जिनको समझा जाता है, कोई शराब नहीं पीता है, इसलिए कि इंसान जानता है, इंसानी माशरे के अंदर बात जानी जाती है कि ये बड़े बड़े गुनाह हैं। लेकिन नेकोकार लोगों से भी बड़े बड़े गुनाह जो कबायर शुमार किए जाते हैं, उसका भी इर्तिकाब होता है और बहुत कसरत से होता है। आप देखेंगे कि बहुत नेकोकार लोग होते हैं, नमाज पंजगाना के आदी होते हैं, फजर भी नहीं छूटती है, कोई नमाज नहीं छूटती है, रवातिब के भी वो पासदार होते हैं, हर वक्त वो पढ़ते हैं, रवातिब का भी वो ख्याल रखते हैं, रोजा रखते हैं, सदका तो खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, हज और उम्रा करते हैं, सब करते हैं। लेकिन उनकी महफिलों में अगर आप बैठेंगे तो उनकी ज़बान से भी ऐसी बातें आती हैं जो कबीरा गुनाह की बात होती है। ये एहसास नहीं होता कि हमारी ज़बान से ये बात निकल रही है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे कबीरा गुनाह बनाया है। महफिलों के अंदर हम बैठते हैं, उसके अंदर अच्छे खासे नमाजी लोग होते हैं, लेकिन उस महफिल के अंदर दूसरों की गीबत की जाती है। गीबत के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक कबीरा गुनाह है, इंसान की जबान से गुनाह करता है और ये कबीरा गुनाह है। गीबत वही चीज हुई कि अगर हम किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहें जो वो सुने तो उससे बुरी लगे और वो चीज उसके अंदर मौजूद हो, यानी जो बुराई हम करें उसकी वो बुराई उस शख्स के अंदर पाई जाए। और इससे बढ़ के ये चीज होती है कि इंसान किसी के बारे में ऐसी बात कहे जो उसके अंदर पाई नहीं जाती, जो बुहतान है, जो गीबत से भी बढ़ के गुनाह है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हमारे ऊपर हक होता है, उनकी बाबत अगर हम कोई बुराई बयान करते हैं किसी महफिल के अंदर तो वो मजीद बड़ी चीज है, बहुत बड़ा वो गुनाह बन जाता है। जैसे वालिदैन का हमारे ऊपर हक है, हमारे असातिज़ा हैं जिनसे हमने इल्म हासिल किया उनका हमारे ऊपर हक है। उसी तरह जो खतीब होते हैं मस्जिद के या मुकर्रिरीन होते हैं उनका हमारे ऊपर हक होता है, इसलिए कि वो दीन की बातें हमें बताते हैं। उनकी बाबत गीबत चुगली करना, उनके ऐब को माशरे के अंदर आम करना, ये चीजें कभी किस्म का और बहुत बड़ा गुनाह है। तो इंसानों को इन चीजों से बचना चाहिए और नेकोकार जो लोग हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि हमसे इस तरह के बड़े गुनाह न हों। इसलिए कि माशरे के अंदर जो बड़े बड़े गुनाह जिनको माशरे के अंदर बड़ा समझा जाता है उससे तो उम्मन लोग बच जाते हैं, लेकिन इस तरह के गुनाह जैसे हसद हुआ, कीना हुआ, बुग़्ज़ हुआ, या इसी तरह दिल के जो गुनाह होते हैं, उज्ब व गुरूर हुआ, इंसान ने दिल के अंदर पाल रखा है कि हम दूसरों से बड़े हैं, किसी को अपने दिल से हकीर जान रहा है,
उसी तरह किसी से वो हसद और कीना रखे हुए है। इस तरह की बातें जो होती हैं, जो अमल क़ुलूब है, जो दिल की बातें हैं, इंसान के दिल के अंदर है, दिल के गुनाह हैं, तो इससे भी इंसान बच के रहे। नेकोकार इंसान है तो उसे हर चीज का ख्याल रखना है कि उसकी नेकी बची रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसकी नेकी कबूल की जाए और वो गुनाहों से बचता रहे। गुनाहों की बाबत, नेकी की बाबत ये चीज है, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, एक नमाज दूसरी नमाज के माबैन के गुनाहों का कफ़ारा हुआ करती है, यानी सगीरा गुनाहों का कफ़ारा हुआ करती है। लेकिन ये वो नमाज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कबूल की जाए, जो शर्त पर पूरी उतरे। उसी तरह एक जुमा दूसरे जुमा के माबैन के गुनाहों का कफ़ारा हुआ करता है, उसको माफ करा देता है। लेकिन वो हमारी नमाज सही मानों में नमाज हो, हमने उसके शरात को पूरा किया हो। उसी तरह वजू की बाबत भी हम लोग सुनते हैं कि वजू के कतरों के साथ इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं, लेकिन वहां भी हदीस के अंदर बिल्कुल वादे है कि वहां भी इंसान ने उसको वजू को अतम तरीके से किया हो, मुकम्मल तरीके से किया हो। उम्रा और हज की बाबत जब बयान सुनते हैं तो वहां भी यही बात हम सुनते हैं। तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि जो नेकी हम करें वो सुन्नत के मुताबिक हो, पूरे इखलास के साथ हो, ऐसी हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल की जाए। और नेकी के साथ साथ हम हर तरह के गुनाह का अपने दिल के अंदर ख्याल रखें, गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें, और अगर हमसे गुनाह हो तो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें। लेकिन अगर इंसान से हमसे अगर दानिस्ता तौर से गुनाह नहीं होता है, लेकिन फिर भी गफलत के बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जो गुनाह शुमार की जाती हैं, तो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगा के रखना चाहिए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहनी चाहिए। ये इंसान का शिआर होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी का ये हिस्सा होना चाहिए कि वो हर महफिल के अंदर, हर घर में, किसी के साथ हो, वो तब भी तन्हा हो, तब भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगा के रखे, उससे इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहे। और इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे कलिमात हदीसों के अंदर, दुआओं की किताबों के अंदर बयान किए गए हैं। वो सब के सब ऐसे हैं कि इंसान उनको अगर इख्तियार कर ले तो उसके लिए बेहद मुफीद हैं। वो इस्तिग़फ़ार का काम भी करेंगे और इंसान से मुसीबतों को टालेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन इस्तिग़फ़ार की वजह से इंसान की ज़िंदगी को आसान करता है। ये सारी खूबियाँ मिलती हैं। सहाबे कराम से तो यहाँ तक मिलता है, हज़रत अनस का बयान मिलता है, बहुत मशहूर असर उनका है, इन्नकुम लतअमलून अमालन हिया अदक़्क़ु फ़ी अय्युनिकुम मिनश्शअर कुन्ना नअुद्दुहा अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिक़ात, कि तुम लोग, ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बिल्कुल नौउम्र सहाबी रसूल थे, और इन्होंने ताबईन के बहुत बाद तक का ज़माना पाया था। तो ताबईन का जो ज़माना था, उस ज़माने में उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे काम जो साहबे कराम नहीं किया करते थे, डरते थे, वो इस ज़माने के अंदर राइज हैं और लोग कर लेते हैं। तो उस ज़माने में उन्होंने कहा था कि तुम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो तुम्हारी आंखों में, जो तुम्हारी निगाह में बाल से भी ज्यादा बारीक है, यानी कोई हैसियत नहीं है, तुम लोग धड़ल्ले से उन गुनाहों को कर लेते हो, इर्तिकाब कर लेते हो। हम लोगों का मामला यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम लोग उन गुनाहों को मुबिक़ात समझते थे, यानी ऐसा गुनाह समझते थे जो इंसान को हिला कर बर्बाद करके रख दे। तो एक सहाबी रसूल हैं जिन्होंने दो ज़माना देखा था। एक सहाबे कराम का एक बहुत ही ताबनाक और रोशन ज़माना था, और एक ताबईन के ज़माना जहाँ थोड़ी बहुत गफलत होने लगी थी। तो इस ज़माने में उन्होंने देखा कि कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो लोग बहुत हल्का और बहुत मामूली समझते हैं कि कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो बयान करते हैं कि सहाबे कराम के ज़माने में इन गुनाहों के इर्तिकाब को बहुत बड़ा समझा जाता था। आज अगर हम गौर करें कि वही सहाबी रसूल आज हमारे दरमियान आ जाएं और देखें कि किस तरह के गुनाह का हम इर्तिकाब कर रहे हैं, और हमारे माशरे के अंदर कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं किसी भी ताल्लुक से, तो वो क्या कहते और इस ज़माने को वो कैसा ज़माना समझते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको गुनाहों को गुनाह दिखाए, हमारी आंखों के अंदर जो गुनाह है वो गुनाह हो, हम उसे गुनाह माने और उसे गुनाह से बचने की कोशिश करते रहें। और जो हमारी नेकियां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो नेकियां भी हम करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि उस अंदाज की हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम कबूल की जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।